Okay, now I'm starting our today's second session. Second session is about variables, what kind of variables we use in C language, okay, and how we can use the variables. So, what are the basic variables in C language, and what is the difference between variable declaration, variable initialization, and what are constants, variables की छा होती है, कैटेबिलिटी वेरिएबल्स ऐसा कीअं डिक्लेयर करे सघूं था, ये सब शयूं हूंदियूं असांजूं, ठीकु है, हिन लेक्चर में. Okay, now come to variable. Say suppose now we are moving towards something new, that is variable. Suppose I am writing here int a is equal to 1. Don't get confused about anything. First of all, let me write int a is equal to 5, int b equals to 10, int c. Then I am writing c is equal to a plus b. Okay, Frasbutter is entered the written known. Printf sum of %d and %d is %d. That's it. A comma B comma C. Let's compile. No error is there, no warning is there. Run. Sum of 5 and 10 is 15. Okay, this is the output, and output is correct. Thing is this, ये जेके शयूं असां लिखियूं int a is equal to 5, ही बेसिकली छा हो, int b is equal to 10, int c असां लिखियो, ये बेसिकली वेरिएबल्स आहिनि, ठीकु है. ही int तव्हांजो डेटा टाइप है, ठीकु है. टाइप ऑफ डेटा someone is entered the waiting room, please wait, sorry for disturbance. Integer is the type of data type, ठीक है. तो integer data type है, I have discussed previously the integer data type में असां नेगेटिव या पॉजिटिव नंबर्स जॾहिं असांखे यूज़ करणा हुजनि त असां जेको डेटा टाइप यूज़ कंदा आहियूं उहो इंटीजर आहे, ठीकु आहे. त हिते इंटीजर डेटा टाइप आहे ऐं टाइप द इंटीजर है, ठीक है. हाँ, वेरिएबल a is the name of variable, b is the name of variable, and c is the name of variable. Now what is the definition of variable? What actually variable is? Variable means changeable. By definition variable means changeable, that's value is not fixed. Variable जी value का भी fix ना होंदी, ठीक है. ॿ चीज़ होंदी आहिनि, हिकिड़ो हूंदो आहे वेरिएबल, ॿियो हूंदो आहे कॉन्स्टेंट, ठीकु आहे. तव्हां मैथमेटिक्स में यू मस्ट हैव रीड दीज थिंग्स. There's a word variable and second word is constant. Variable means changeable, that value is not fixed, that value is changeable, and second one is constant, that value is fixed. Say suppose 1, 2 or any kind of number, its value is fixed. These are constant. छो जो जेको 10 अगर आउं हिते लिखां 10, हिन जी का वैल्यू चेंज करे सघां थो? नो, इट्स वैल्यू इज फिक्स्ड. 10 remains 10 in all condition. But variable a is equal to 5, b is equal to 10. Now c is a variable, its value is not defined. I have declared the variable a and its type is integer, and I have initialized the variable a with 5. मतलब a खे मूं वेरिएबल्स खे जेको वैल्यू बि ॾिनी आहे जेकी 5 है, ठीकु है. a खे मूं इनिशियलाइज़ बि कयो आहे. हिते ॿ शयूं आहिनि, हिकिड़ो हूंदो आहे वेरिएबल डिक्लेरेशन,
ॿियो हूंदो आहे वेरिएबल डिक्लेरेशन प्लस इनिशियलाइजेशन। मुंहिंजो मोस्टली क्वेश्चन हिकिड़ो जेको तव्हांजे पेपर में ईंदो उहो इहो ईंदो त इनिशियलाइजेशन ऐं डिक्लेरेशन में छा फ़र्क़ु आहे। ठीकु आहे, इनिशियलाइजेशन ऐं डिक्लेरेशन में फ़र्क़ु इहो आहे, हिते मूं वेरिएबल खे डिक्लेयर कयो, ठीकु आहे, वेरिएबल ए सपोज़ वी हैव इंटीजर ए, इन जो मतिलबु आहे मूं सिर्फ़ु ऐं सिर्फ़ु वेरिएबल डिक्लेयर कयो आहे, हिकिड़ो वेरिएबल आहे ए जंहिंजो टाइप आहे इंटीजर, बट आई हैव नॉट गिवन एनी वैल्यू टू दैट। जेकॾहिं मूं का वैल्यू न आहे ॾिनी, न सिर्फ़ु ऐं सिर्फ़ु डिक्लेयर कयो आहे त उहो जेको आहे सिर्फ़ु डिक्लेरेशन आहे। पर जेकॾहिं आउं हुनखे हिकिड़ी वैल्यू ॾियां थो ए इज़ इक्वल टू 5, now that means initialization. I am declaring the value variable plus initializing the variable, मतलब आउं वेरिएबल खे डिक्लेयर बि कयां पियो ऐं हिनखे इनिशियलाइज़ बि कयां पियो, मीन्स हुनखे वैल्यू बि ॾियां पियो। त इहा शइ जेको आहे तव्हांजी आहे, त जॾहिं तव्हां जेको आहे वेरिएबल खे डिक्लेयर बि कयो ऐं इनिशियलाइज़ बि कयो त जेको आहे इन में फ़र्क़ु इहो हूंदो आहे, जीअं इंटीजर बी आहे, ठीकु आहे, उनजी वैल्यू मूं हुनखे असाइन कई 10, आई हैव असाइंड 10 टू वेरिएबल बी दैट इज़ टाइप ऑफ इंटीजर, जंहिंजो टाइप छा आहे इंटीजर, and I have declared another variable that is c. I have just declared, I have not initialized variable c. मूं वेरिएबल c के का वैल्यू असाइन ना कई। now there is a स्टेटमेंट ओवर हियर c इज़ इक्वल टू a प्लस बी, मीन्स वेरिएबल c जेको आहे पहिरीं त मूं सिर्फ़ु ऐं सिर्फ़ु वेरिएबल c खे डिक्लेयर कयो आहे इंटीजर c। नाउ c इज़ इक्वल टू a प्लस बी, c खे मूं हिकिड़ी वैल्यू असाइन कई आहे त a वेरिएबल ऐं b वेरिएबल जो सम कयो ऐं उहो जेको आहे c खे मूं असाइन कयो आहे, मीन्स c इज़ इक्वल टू a प्लस बी। ठीकु आहे, नाउ व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ a 5, what is the value of b 10, so c is equal to a plus b, means c is equal to 5 plus 10, so answer should be 15. Okay, answer should be 15. So now in printf I have written sum of percent d and percent d is percent d. Okay, sum of percent d and percent d is percent d. I have discussed previously that first percent d will read the value from the first variable that you have used. So first percent d will read the value that percent, this one will read the value from a, second percent d this will read the value from b, and third percent d it will read the value from c. So sum of first percent d means a, sum of a means 5, sum of 5, its answer should be like this. I am just sum of, दिस इज़ जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड। ठीकु आहे, हीअ जेकी शइ लिखां पियो न हीअं सम ऑफ या जेको बि सिर्फ़ु तव्हांखे सम्झण लाइ, सम ऑफ परसेंट डी, फर्स्ट वारो परसेंट डी छा मां वैल्यू रीड कंदो ए मां, त ए जी वैल्यू छा आहे 5, त सम ऑफ 5 देन एंड परसेंट डी, सेकेंड वारो परसेंट डी छा मां वैल्यू रीड करे थो बी, मीन्स 10, सम ऑफ 5 एंड 10 देन इज़ थर्ड वारो परसेंट डी छा आहे सी, सी छा जे बराबरि आहे ए प्लस बी, a plus b means 5 plus 10, 5 plus 10 means makes 15. So its answer should be like this. हिन printf जॾहिं असांखे हिन प्रोग्राम खे रन कंदासीं न त हिन जो आउटपुट कुझु हिन तरीक़े जो हुअणु खपे, sum of 5 and 10 is 15. Now let's see, sum of 5 and 10 is 15. Let's compile this, compile and run this. Yes, sum of 5 and 10 is 15. Now to make your concept further clear, अगर आउं हीअं लिखां sum of, पहिरीं आउं b खे लिखां पोइ a खे लिखां, छा को फ़र्क़ु पए थो? Let's see, compile, run. Sum of 10 and 5 is 15. छो ईअं छो पियो अचे? छो जो मूं छा चयो त फर्स्ट वारो परसेंट डी हमेशह फर्स्ट मां वैल्यू रीड कंदो, त बी फर्स्ट में जेको आहे बी आहे त बी जी वैल्यू छा आहे 10, त इन करे मुंहिंजो आंसर जेको आहे आउटपुट छा पियो अचे, सम ऑफ 10 एंड 5 इज़ 15। छो जो पहिरीं मूं बी रखियो आहे, बी मीन्स 10, बी इज़ इक्वल टू 10, एंड सेकेंड वन इज़ ए, त ए जी वैल्यू जेको आहे 5 आहे, त सम ऑफ 10 एंड 5 इज़ परसेंट डी दैट इज़ 15। ठीकु आहे, हाणे से सपोज़ ऐं अगरि हीअं लिखां C
is equal to a minus b. There's a second, ठीक है, c is equal to a minus b. Sum of percent d and percent d is, there's a, there's a b. Now second printf is there, printf difference of, sorry, percent d and percent d is, sorry, is percent d. Let's see, a, then b, then c. Let's see if there is any kind of error. No error is there. Just a little bit. इतने जो को असां डिफरेंस जिते लिखल आहे असां \n मीन्स न्यू लाइन, तो असांजी रीडेबिलिटी जो कंफर्म थिए. डिफरेंस ऑफ 5 and 10 is -5. Okay, see, there is a little bit mistake. The जॾहिं हिते मूं लिखियो आहे sum of 5 and 10 is, it is giving me wrong answer. Sum of 5 and 10 is -5. Actually sum of 5 and 10 is not -5, is it's 15. Then why it is giving me wrong answer? Say suppose if I change this here, c is equal to a minus b. Now let's see. Okay, now it is correct. Sum of 5 and 10 is 15. Okay, difference of 5 and 10 means 5 minus 10 makes -5. ठीक है, 5 में अगर 10 माइनस सब्ट्रैक्ट, 5 में से 10 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -5 बचेगा. ठीक है, क्योंकि बड़ी वैल्यू माइनस की है, तो 5 में से अगर मैं 10 डिडक्ट करता हूँ तो हमारा जो है आंसर क्या आता है, -5 आता है. तो ये है एक बेसिक कैलकुलेशन का प्रोग्राम मैं बना रहा हूँ बेसिकली, जस्ट मेक यू ऑल अंडरस्टैंड. तो सम ऑफ परसेंट डी एंड परसेंट डी, फर्स्ट हमारी स्टेटमेंट क्या थी कि सम ऑफ परसेंट डी एंड परसेंट डी इज परसेंट डी. फर्स्ट वाला परसेंट डी ए से वैल्यू रीड कर रहा था, सेकंड वाला बी से कर रहा था, और थर्ड वन सी से कर रहा था. सो सी वाज इक्वल टू, ओरिजिनली जो पहले जो सी बराबर था ए प्लस बी के, उसके बाद मैंने सी की वैल्यू चेंज कर दी. ठीक है, फर्स्ट वाले प्रिंटफ के बाद मैंने सी की वैल्यू चेंज की है. मैंने कहा है कि सी पहले तो ए प्लस बी था, अब सी जो है ए माइनस बी के बराबर है. ठीक है, उसके बाद मैंने प्रिंटफ लिखा डिफरेंस ऑफ परसेंट डी एंड परसेंट डी इस परसेंट डी. तो फर्स्ट वाला परसेंट डी ए से वैल्यू रीड कर रहा है, सेकंड वाला बी से कर रहा है, एंड थर्ड वाला सी से. तो ये लिखने का, ये समझाने का मकसद ये था कि मैंने बोला था कि इंटीजर जब डेटा टाइप यूज़ करते हैं, जब INT डेटा टाइप हम यूज़ करते हैं, तो इंटीजर वेरिएबल जब यूज़ करते हैं उसमें हम नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों नंबर यूज़ कर सकते हैं, नेगेटिव एंड पॉजिटिव. तो जैसे हमारा प्रूव हो गया, फर्स्ट वन सम ऑफ 5 and 10 इज़ 15, तो हमारा पॉजिटिव नंबर भी आ गया. डिफरेंस ऑफ 5 and 10 इज़ -5, तो हमारा नेगेटिव नंबर भी आ गया. तो ये था. अब इसको फर्दर मॉडिफाई करते हैं. c इज इक्वल टू a मल्टीप्लाई b. लेट्स सी, printf परसेंट \n for new line, product of percent d and percent d is percent d. Let's see, a is there, b is there, and then c. Let's compile. Alt F9 for compile, control F9. Product of 5 and 10 is 5 10s are 50. Okay, now see, first one is sum of 5 and 10 is 15. 5 plus 10 is equal to 15. Okay, no any mistake is there. Difference of 5 and 10 is -5, means 5 minus 10 is equal to -5. No mistake is there. Then product of 5 and 10 is 50. 5 10s are 50, so means my answer is accurate. So no any mistake is there. ॾिसो मूं छा कयो आहे, मूं जेको वेरिएबल्स यूज़ कया आहिनि, हिकिड़ो इंटीजर डेटा टाइप जा, हिकिड़ो ए वेरिएबल हो, ॿियो बी हो, टियों सी हो. ठीकु आहे.
मूं चयो हो इनिशियलाइजेशन ऐं डिक्लेरेशन में फ़र्क़ु हूंदो आहे। डिक्लेरेशन मीन्स तव्हां सिर्फ़ु ऐं सिर्फ़ु वेरिएबल खे डिक्लेयर कयो पिया, ऐं इनिशियलाइजेशन मीन्स तव्हां वेरिएबल खे डिक्लेयर बि कयो पिया ऐं प्लस में हुनखे वैल्यू बि असाइन कयो पिया। जीअं हिते असां हिनखे वेरिएबल खे डिक्लेयर बि कयो, इंटीजर ए मीन्स असां डिक्लेयर कयो, एंड वी हैव इनिशियलाइज्ड ए विथ 5. We have assigned a value to variable, that is 5, means we are declaring plus initializing the variable. So this is the difference between variable declaration and initialization. Declaration means you are declaring the variable, but you are not initializing the variable. But when we say initialization, means you are declaring the variable as well as you are assigning the value to that particular variable. So here I have assigned 5 to variable a, 10 to variable b. Now c, integer c, I am not assigned any value. Now I am assigning the value according to my I am giving them arithmetic operation. C is equal to a plus b, that is the equation. C is equal to a plus b. Now sum of percentage. Now c, यहाँ पे c की वैल्यू जो है यहाँ से रीड कर रहा है, जो मैंने यहाँ पे लिखी है, c इज इक्वल टू a प्लस बी। सेकेंड में c की वैल्यू c इज इक्वल टू a माइनस बी। तो यहाँ पे जो c की वैल्यू रीड कर रहा है ना, वो यहाँ से कर रहा है, c इज इक्वल टू a माइनस बी, जो वहाँ पे लिखा हुआ है। ये जो c की वैल्यू रीड कर रहा है ना, वो यहाँ से रीड कर रहा है, a मल्टीप्लाई बाय b। नाउ वन थिंग मोर, कम टू डिवीजन, c is equal to a divided by b. Let's see if its answer is correct or not. Printf backslash n division of %d and %d is %d. Let's see, a comma b comma c. Control F9 for compile. Control F9. Division of 5 and 10 is 0. Why it is giving me like this? Because I said previously that तव्हांजो जेको इंटीजर डेटा टाइप है न, उनमें नेगेटिव ऐं पॉजिटिव नंबर त खणंदो, पर जिते पॉइंट में वैल्यू हुजे न, छो जो 5 ऐं 10 जी का परफेक्ट जेको डिवीजन कोन थींदी। ठीक है, 5 अगर अंदर रखंदासीं, 10 ॿाहिरि रखंदासीं, मीन्स पॉइंट में असांजो आंसर ईंदो, त इन करे जेको हुनजो आंसर 0 पे ॾेखारे। जिते असांखे पॉइंट में जिते अगरि जेके असांखे फ्लोटिंग पॉइंट वेरिएबल या डेसिमल वैल्यू खपे न, उते असां जेको आहे इंटीजर यूज़ नथा करे सघूं। उते देयर वी विल यूज़ एन अदर डेटा टाइप, दैट इज़ फ्लोट। Let's declare an other variable. Okay, int c is there, int d. Okay, no sorry, not int, float, float, float. That full form is float, is floating point variable. Okay, in float we can use decimal values, means that comes in point, say suppose 2.5, 3.5 or any decimal value, and its length is quite big. ठीक है, फ्लोटिंग पॉइंट वेरिएबल। ऐं फ्लोटिंग पॉइंट वेरिएबल में असां जेको आहे ज़रूरी न आहे त असां जेको ख़ाली जेको आहे पॉइंट वारी वैल्यू यूज़ करियूं। असां जेको आहे नॉर्मल जेको इंटीजर में वैल्यू यूज़ करियूं पिया, नेगेटिव ऐं पॉजिटिव, उहे बि यूज़ करे सघूं था, प्लस में असां जेको आहे डेसिमल वैल्यू बि यूज़ करे सघूं था। नाउ लेट्स सी, d इज इक्वल टू a डिवाइडेड बाय b. लेट्स सी इफ इट इज़ गिविंग मी करेक्ट आंसर और नॉट. Division of 5 and 10 is 0. It is again giving me wrong answer because I have not declared here percentage. Division of 5 and 10 is 0.0000. Why it is giving me wrong answer? Because here is a जेको आहे तव्हांजो उहा इंटीजर, ठीकु आहे, %d। सी है, a तव्हांजो इंटीजर है, b तव्हांजो इंटीजर है, ऐं तव्हां d जेको आहे फ्लोटिंग पॉइंट वेरिएबल यूज़ कयो पिया। ऐं जेको आहे तव्हां जेकॾहिं फ्लोट यूज़ कयो था न, त तव्हांखे सभु जा सभु वेरिएबल्स जेको आहिनि फ्लोटिंग पॉइंट में यूज़ करणा पवंदा। ठीकु है,
फ्लोटिंग पॉइंट जो पोइ न्यू प्रोग्राम ठाहियूं था, ठीकु आहे। फ्लोट खे फ़िलहाल जेको आहे ही जस्ट इंटीजर खे हिते ई क्लोज़ करियूं था। ठीकु आहे, इस ताईं ई जस्ट इंटीजर जो लिटिल बिट इंट्रोडक्शन हो त छा हो। आई एन टी ए इज़ इक्वल टू 5, आई एन टी बी इज़ इक्वल टू 10, आई एन टी सी, ठीकु आहे। त प्रिंट एफ सम ऑफ परसेंट एन परसेंट ई जेको बि असांजो जेको आहे इहो हिकिड़ो नंढो प्रोग्राम हो जंहिंमें असां इहे सभु शयूं यूज़ कयूं। असां जेको आहे पंहिंजा वेरिएबल्स यूज़ कया, इंटीजर वेरिएबल हो। नाउ आफ्टर दिस कम टू फ्लोट, आई एम चेंजिंग द प्रोग्राम। FLOAT float, A is equal to 10, float B is equal to 30, float C. Now C is equal to A divided by B. In printf, I am giving a message. Okay, Zoom is giving a warning that you are running out of time. Well, no issue. Okay, I have used here floating point variable. Okay, floating point, I have given the little bit introduction of floating point variable. Floating point variable means when we want to use a decimal value. So float A is equal to 50, and I said previously ज़रूरी ना आहे त जेको आहे त जेकॾहिं फ्लोटिंग पॉइंट मीन्स मूं तव्हांखे ॿुधायो त फ्लोटिंग पॉइंट असां तॾहिं यूज़ कंदा आहियूं जॾहिं असांखे का डेसिमल वैल्यू खपे, पर ज़रूरी न आहे त मूं 50 लिखियो आहे त उहो जेको आहे रीड कोन कंदो। नो, इन फ्लोटिंग पॉइंट वी कैन यूज़ इंटीजर वैल्यू एज वेल एज द डेसिमल वन वैल्यू, त को बि इशू न आहे अगरि हुन में पॉइंट आहे या न आहे, ठीकु आहे। पर इंटीजर में असां का बि पॉइंट वारी वैल्यू यूज़ नथा करे सघूं। प्रिंट एफ डिवीजन of percent f and percent f is percent f. A comma B comma C. Let's see. No error, no warning. Division in 50 and 30 is 1.666667. Now the question arises is this: he 50 का 50 point, why it is giving me answer like this 50.00000, because float takes 4 bytes of yes, float takes 4 bytes of memory. So अगर अगर मैं चाहता हूँ कि मुझे पॉइंट के बाद जैसे ये दिखा रहा है ना, इट इज़ शोइंग मी 50.00, अगर पॉइंट के बाद मुझे जितनी वैल्यूज़ चाहिए ना, अगर से सपोज मैं चाहता हूँ कि पॉइंट के बाद मुझे सिर्फ 2 नंबर चाहिए, ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे परसेंट डॉट टू, सिर्फ मैं यहाँ पे चेंजिंग कर रहा हूँ सी की वैल्यू पे, परसेंट डॉट टू एफ। नाउ सी 1.67, मुझे सिर्फ 1.67 दिखा रहा है। और यहाँ पे अगर मैं चाहता हूँ परसेंट डॉट ज़ीरो, परसेंट डॉट ज़ीरो, डिवीजन ऑफ 50 एंड 30 इज़ 1.67। नाउ सी, मतलब मैंने परसेंट एफ था ना, जो जहाँ पे परसेंट एफ था वहाँ पे मैं पॉइंट जितना, अगर मैं 1 लिखूँगा तो मीन्स पॉइंट के बाद एक जो भी डिजिट आएगा वो 0 हो या कुछ भी हो वो 1 आएगा। अगर मैं चाहता हूँ कि पॉइंट के बाद कोई भी वैल्यू ना आए तो परसेंट डॉट ज़ीरो दे दूँगा, तो ये फ़र्क है, ठीक है, ये 0 है, ओ नहीं है। नाउ सी, डिवीजन ऑफ 50 एंड 30 इज़ 1.67। अगर मैं चाहता हूँ पॉइंट के बाद जैसे दिखा रहा है ना, डिवीजन ऑफ
50 एंड 30 इज़ 1.67। तो 1.67 को अगर मैं चाहता हूँ यहाँ पे कुछ और डिजिट्स भी हो तो यहाँ पे मैं 3 कर देता हूँ। Ctrl F9, Ctrl F9, whatever. Yes. Let's write it like this. 50.0, 30.0. Division of %f and %f is Ctrl F9, Ctrl F9. सो डिवीजन ऑफ 50 एंड 30 इज़ 1.67। तो ये था जो डिवीजन का। अगर मुझे कोई फ्लोटिंग पॉइंट वेरिएबल यूज़ करना हो तो मैं ऐसे कर सकता हूँ, अगर मुझे कोई पॉइंट में वैल्यू चाहिए तो मैं ऐसे कर सकता हूँ। तो मैंने उस दिन क्लास में एक चीज़ बताई थी कि जैसे ये लाइब्रेरी फाइल है ना, stdio.h, conio.h, इसी तरह। लेट मी सी हाउ मच टाइम इज़ रिमेनिंग। 4 minutes आर रिमेनिंग। अगर मैं चाहूँ तो जैसे है ना, ये 30 है, ये 50 है, यहाँ पे मैंने डिवीजन रखा है। अगर मैं यहाँ चाहूँ ना तो मल्टीप्लाई प्लस जो मैंने पहले किया था ना वो भी मैं यहाँ पे कर सकता हूँ। तो डिवीजन की जगह पे यहाँ पे मैं रखूँ सम ऑफ %e एंड %d इज़ %f। सम ऑफ 50 एंड 30 इज़ 80। तो ये ऐसे भी लिख सकते हैं हम, जो है नॉर्मली नेगेटिव और पॉजिटिव नंबर को भी फ्लोटिंग पॉइंट में यूज़ कर सकते हैं। नो इश्यूज़ देयर। एक्चुअली थिंग इज़ दिस दैट वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम। We will discuss the remaining in our next lecture.